What's up, बच्चों? uh, Beta, the lesson which we are going to read today is the last lesson. The last lesson, which is ironically the first lesson in your book Flamingo. The lesson is based during the Franco-Prussian War, in which Prussia, led by Bismarck, consisted two areas of France and taken over the possession of those two areas named Alsace and Lorraine. Both the two regions of France were annexed by Bismarck. You must have heard it in your history book of class 12, class 10, sorry. The main theme of the story is based on loving your mother tongue, having pride of learning your mother tongue. But the people of these two areas, Alsace and Lorraine, never realized that their own mother tongue would be snatched away from them by some other country, and they will be forced to read and speak in the language which is completely alien to them. Okay, बच्चों? Let me give you a gist of the story which will make the things easier for you. सिंपल सी स्टोरी है, बताया है कैसे एक जो नेरेटर है फ्रांस, उसका नाम है, छोटा बच्चा है. ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स हिज स्कूल. वन डे ही वॉज लेट फॉर स्कूल, एंड ड्यूरिंग द वे ही सीज सो मैनी थिंग्स which diverted his attention from going to school. There were two reasons for him not going to school, not willing to go to school that day. One, he was not prepared for that day's lesson, which was on grammar topic called participles. The other reason being the weather was fine, Prussian soldiers were drilling, so he didn't want to go to school. But he subdued his intention to not to go to school and ultimately moved towards the school. On the way, he sees that there was a large crowd in front of the bulletin board. Bulletin board क्या है बच्चों? नोटिस बोर्ड है, फ्रॉम वेयर दे रिसीव्ड ऑल देयर न्यूज़. अब वो सोचता है कि आज क्या न्यूज़ आई है, वाई देर इज़ a crowd in front of the bulletin board. So he wanted to go there and see what happened, but suddenly वहाँ पर क्या होता है, एक blacksmith होता है, his name was Hoser. वो उसको बोलता है, बेटा अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी क्यों स्कूल जा रहा है. He thought he was making fun of him because he was late for the school that day. But when he reached the school, he realized that the atmosphere of the school is completely different that day. होता क्या है, स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल नहीं चल रहा, एज इफ इट वॉज अ संडे मॉर्निंग. So there were some changes which he noticed there, and we'll discuss about those changes in the story. अंदर एंटर करता है तो एक और चीज़ देखता है कि जो विलेज एल्डरली पीपल हैं, दे वर सीटेड एट द बैक बेंचेस. One more change, he noticed that his teacher M. Hamill was wearing his Sunday clothes. Sunday clothes means which he used to wear only on special occasions. Exactly clothes को अभी हम स्टोरी के अंदर देखेंगे. फिर वहाँ पर कैसे वो एम एम एल के बिहेवियर में चेंज देखता है, एम एम एल कैसे उनको समझाता है कि उनको अपनी लैंग्वेज को लर्न करना छोड़ना नहीं है. नो मैटर इफ़ द जर्मन्स वुड इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन देम, that doesn't matter, but they need to stick to their language, because when a people are enslaved, according to MML, their language is the key to their freedom. ठीक है बच्चों, ये पढ़ेंगे. इसके साथ साथ हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चंस. एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं, ठीक है. बीच में जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको स्टोरी के साइड बाय साइड बताता चलूँगा. फिर उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे और बाकी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे बच्चों तो बिल्कुल चैप्टर एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा. और जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ओनली दीज क्वेश्चंस विल बी सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ओके बच्चों. उसके बाद भी अगर स्टोरी के बाद इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू सर्फ वेरियस वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट एंड यू फाइंड सच क्वेश्चंस विच यू डोंट seem to understand, you can ask me in the chat box. ठीक है बेटा. Let's read the story word to word. I started for school very late. The narrator of the story, as I told you, is Franz, a kid.
आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। बेचारा डर रहा था कि यार लेट हो गया हूँ आज तो एम सर से पिटाई होगी। Especially because MML had said that he would question us on participles, and I didn't know the first word about them. He was completely clueless about this topic of grammar participles. This is a part of known finites आपने पढ़ा होगा ग्रामर में जूनियर क्लासेस में. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. Drilling means Prussian soldiers were exercising. प्रशिया क्या है? प्रशिया बेटा कई सारी कंट्रीज का मिला के पार्ट था जिसमें जर्मन मेन उसका पोजीशन थी जिसमें जर्मनी के पास, और बिस्मार्क ने इसको लेड किया था, इस पूरे जो इन्होंने एनेक्स किया था और जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, विच यू मस्ट हैव हर्ड इन योर क्लास 10th हिस्ट्री बुक्स. तो वही है, वही उसी के ही बेस पर ये दिखा रखा है. आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों प्लेसेस वापस दिए थे फ्रांस को. ठीक है. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, रीज़न क्या था, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. बट उसने अपनी पूरी जान लगाई कि नहीं यार स्कूल तो जाना ही है, छोड़ो पिटाई होगी, क्या क्या फ़ायदा यहाँ रुकने से, भागो. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. Sari bad news. What kind of bad news? The lost battles, the draft, the orders of the commanding officers. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? Obviously, when they have received all bad news from that bulletin board, and still there was a news, there was one new news, and people were there trying to understand what was the news at that time. So he too got curious कि अब क्या हुआ यार, अब क्या बुरी खबर आ गई, तो बुलेटिन बोर्ड के पास जाता है. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice, blacksmith का नाम था वॉचर और उसका एक अप्रेंटिस था. अप्रेंटिस मीन्स उसका हेल्पर जो सीख भी रहा था साथ साथ. रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. उसने कहा बेटा अभी इतनी जल्दी तेज तेज मत भाग, बहुत टाइम है अभी स्कूल जाने में. ही वॉज सीरियस एक्चुअली, बट फॉर फ्रांस इट सीम्ड एज इफ ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. जब हम कोई गलती करते हैं ना और कोई सही बात भी हमें बोलता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये हमें ताना मार रहा है. सो द सेम फीलिंग ही हैड इन हिज माइंड एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. तो वो भागता भागता बेचारा फटाफट पहुंचा स्कूल में. एम हेम्बल उसके टीचर का नाम है, हु वॉज हिज जर्मन टीचर एंड ही हैज़ बीन सर्विंग देयर फॉर द लास्ट 40 years. Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison. Lessons repeated in unison मतलब अब वो बता रहा है कि यूजुअली व्हेन वी गो टू स्कूल तो जनरली क्या होता है, आप अंदर एंटर करते हो, देयर इज़ क्वाइट अ नॉइज़. नॉइज़ किस तरीके की? लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. तो पहली चीज़ वो नोटिस जो उसने करी है वो क्या करी है कि लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन की कोई आवाज़ नहीं आ रही, डेस्क को ओपन और क्लोज करने की कोई आवाज़ नहीं आ रही. अब आता है लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन का क्या मतलब है. इसका मतलब है बेटा जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, जूनियर क्लासेस में बच्चे करते हैं ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वो होता है लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज. तो वो आवाज़ भी नहीं थी. वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है, ये नॉर्मल यूजुअली बता रहा है कि ऐसा होता था, बट आज ऐसा नहीं है. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर टक 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 अपने रूलर को टेबल पे मार रहे हैं तो उसका साउंड अलग आता था. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन. अब उसे क्या लगा कि यार अब मैं तो जब जाऊँगा तो शोर शराबा हो रहा होगा, तो चुपके से अंदर घुस जाऊँगा, निकल जाऊँगा क्लास के अंदर, कोई नोटिस नहीं करेगा. बट हुआ क्या? बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. कैसा क्वाइट था? जैसे संडे मॉर्निंग का. अब बेटा यहाँ पर एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग है ना, इस तरीके की चीज़ें हम पहले लिटरेचर में नहीं करते थे, मतलब प्रोस सेक्शन में नहीं करते थे, बट अब करनी पड़ेगी बिकॉज आपको पता है न्यू फॉर्मेट जो हो गया MCQ पैटर्न. तो ये लाइन देकर आपसे पूछ सकते हैं इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है. पोएटिक डिवाइस नहीं बोलेंगे, लिटरेरी डिवाइस बोलेंगे या फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे. तो यहाँ पर नोट कर लो, सिमिली है. ठीक है बेटा.
थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. उसने देखा, अरे यार मैं तो चुपके से घुसने की सोच रहा था, यहाँ तो सारे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अब तो आज तो पिटाई होएगी. एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. एम हेमल वहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा था, रूलर अपने आर्म में लगा रखा था उसने. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे गेट खोल के अंदर सबके सामने जाना पड़ा. यू मस्ट हैव इमेजिन्ड सम टाइम इन ड्यूरिंग योर 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि एवरीबडी इज सीटेड क्वाइटली इन द क्लास एंड यू गोट लेट एंड सडनली यू एंटर इनटू द क्लास, द होल क्लासेस अटेंशन इज टुवर्ड्स यू. तो सेम अभी उसके साथ फील हो रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कैसा लगेगा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. देखा, वो भी आपको कह रहा है इमेजिन कर लो, आप कर सकते हो ईजिली. बट नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ. ऑन द contrary, एम हेमल टॉक टू हिम इन अ वेरी पोलाइट मैनर विच ही हैड नेवर डन दैट बिफोर दिस डे. एम हेमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. उसने कहा, बेटा आ जा, तुम तो तेरे बिना ही पढ़ाई शुरू कर रहे थे, चल फटाफट बैठ जा. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अब सबसे पहले ये बात आती है, उसने सबसे पहले क्या नोटिस किया, स्कूल के अंदर नोटिस किया संडे मॉर्निंग जैसे एटमॉस्फेयर. दूसरा उसने नोटिस किया सब बैठे हुए चुपचाप क्लास में, मैं ही लेट आया हूँ. अब जब वो बैठ गया, जब वो डर थकार के बैठ गया, तब उसने रियलाइज़ किया कि अबे ये तो आज सर कौन सी ड्रेस पहन के आए हैं. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. अब ये बेटा डिस्क्रिप्शन जरा ध्यान से पढ़ लेना किस तरीके की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी. Had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब ये जो अटायर उसका उस दिन था, which he used to wear only on special occasions. Special occasions means जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, और एनी अदर फंक्शन, एनुअल डे यू कुड से. इसके अपार्ट फ्रॉम दैट ही यूज्ड टू वेयर दैट ड्रेस, दैट अटायर ऑन इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज. तो आज के पहनी हुई उसने ये वाली ड्रेस, ठीक है. अब इसकी ड्रेस का आप पूरा ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से देख सकते हो. ये क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. पूरा स्कूल शांत था, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स. यहाँ पर याद रखना, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा उसको अफेक्ट, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा. सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा, स्कूल शांत था, क्वाइट था, वो नहीं लगा. सरप्राइजिंग था, बट द मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट वॉज टू सी विलेज एल्डरली पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर, मतलब बच्चों की तरह बैठे हुए थे सारे. अब उनमें कौन कौन था. ओल्ड होजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड. बेटा 3 कॉर्नर्ड हेड जो शेप होती है आप देख सकते हो नेट पर. 3 कॉर्नर्ड हेड पे ना यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ होता है, एक एरिया होता है, मतलब यहाँ से फ्री होता है. क्यों, जनरली वो गन कैरी करने के लिए होता है, तो उसका गन का जो पॉइंट होता है ना वो टच ना करे, इसलिए 3 कॉर्नर हेड होता है, ठीक है. द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स. तो ये कुछ जाने माने लोग कुछ बैठे हुए थे वहाँ पर. डिस्टिंग्विश्ड पीपल ऑफ द विलेज, एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज. एवरीबडी लुक्ड सैड एंड एवरीबडी वॉज सैड. अभी तक हमारे जो नरेटर है फ्रांस, उसको नहीं पता कि वाई आर दे लुकिंग सो सैड एंड वाई आर दे सीटेड एट द बैक बेंचेस अलोंग विद अस ड्यूरिंग द क्लास गोइंग ऑन. पेटीएम भी नहीं है तो ये क्यों आए. एंड होजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर. होजर जो था, जो बंदा था, वो एक ओल्ड प्राइमर लेकर आया था. प्राइमर क्या होती है बेटा, बेसिक बुक, जो अल्फ़ाबेट्स की जो बेसिक बुक होती है ना उसको प्राइमर बोलते हैं. जिसमें जैसे हमारे, अगर आप इंग्लिश में देखो तो ABCD की जो बेसिक बुक होती है, विच द किड्स इन नर्सरी एंड प्री नर्सरी रीड दीज डेज. थम्ड एट द एजेस. थम्ड एट द एजेस का मतलब वो बुक एजेस पे से ना थोड़ी ख़राब सी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करी हुई, बहुत ज़्यादा पड़ी हुई ऐसे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. वो देख रहा था, उसे पढ़ रहा था क्या क्या है बुक के अंदर.
While I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब उसने राज खोला कि क्या बात थी. उसने बोला, बच्चों, आज ये मेरा लास्ट लेसन है. आज के बाद तुम्हें अब मैं नहीं पढ़ाऊँगा. क्यों नहीं पढ़ाऊँगा, अब वो आगे बताएगा. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अल्साज, बेटा इसकी प्रोनाउंसिएशन अल्साज है, याद रखना, ठीक है. कुछ लोग ओल्सेस पढ़ी पढ़ते हैं, कुछ अल्साचे भी पढ़ते हैं. ओल्साज है इसकी, अल्साज एंड लोरेन. तो दोनों जगह पर एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine because they are in the territory of Prussia. So the main language of Prussia was German. तो अब यहाँ पर सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. इसको बोलते हैं imposing one's language on the others. ठीक है. लिंग्विस्टिक शोवनिज्म का आगे एक क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में भी है. व्हाट इज लिंग्विस्टिक शोवनिज्म? उसका मतलब ये होता है कि अपनी टू कंसीडर वंस लैंग्वेज सुपीरियर एंड हैविंग अ फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी टुवर्ड्स द अदर लैंग्वेजेस. ठीक है बेटा. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. अब वो बोल रहा है, बेटा आज तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है. अभी तक तुमने जैसा पढ़ा वैसा पढ़ा, आज से ध्यान से पढ़ लो. व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. अब यहाँ पर थंडर क्लैप को इसलिए यूज़ करा है. व्हाट अ थंडर क्लैप. अब यहाँ पर अगर पूछ लिया थंडर क्लैप में कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच, तो आप बता दो मेटाफर. थंडर क्लैप यहाँ पर इसलिए यूज़ किया कि दोज वर्ड्स प्रूव टू बी रियली स्टार्टलिंग, रियली सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग टू फ्रांस. ओ द रैचेस. अब वो कह रहा, अच्छा ओ द रैचेस, ओ उन बुरे लोगों ने ये लिख रखा है वहाँ पर. दैट वॉज वट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल. तो ये लगाया बुलेटिन बोर्ड पर. अब वो हैरान हो रहा है बहुत ज़्यादा. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. वगैरह अभी तो मैंने लिखना भी नहीं सीखा और ये लास्ट लेसन. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. अब मैं कभी सीखूंगा ही नहीं. मस्ट स्टॉप देयर देन. यहीं पर ही रुकना पड़ जाएगा. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन. नाउ ही रिग्रेटेड. वाई डेंट ही टेक केयर अबाउट हिज स्टडीज? वाई डेंट ही take heed? Why didn't he take interest in his studies which he kept avoiding? उसे तो बाहर घूमने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, प्रिपेयर भी नहीं करके आया था ग्रामर का टॉपिक. तो जनरली यही होगा उसका रूटीन. तो आज उसको अब लग रहा है कि अरे यार मैंने कुछ सीखा ही नहीं. यहाँ पर बेटा एक बड़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर. एक जो टॉपिक है इसमें वो बताना चाहता है नरेटर. प्रोकास्टिनेशन मीन्स कीप डिलेइंग द थिंग्स. कीप डिलेइंग द थिंग्स. यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. ठीक है. तो ये प्रोकास्टिनेशन का भी इसके अंदर एक पॉइंट है. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. सार बेटा एक रिवर का नाम है. इस एरिया के बीच में से सार रिवर निकलती है फ्रांस में. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड मच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. वो कह रहा है मेरी बुक्स जो मेरे को कुछ टाइम तक, अभी थोड़ी देर पहले तक न्यूसेंस लगती थी, प्रॉब्लमेटिक लगती थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो मेरे कितने पुराने दोस्त हैं मेरे से दूर जा रहे हैं. एक बात और, जब कोई चीज़ हमारे कॉन्टेक्ट में कंटिन्यू रहती है ना, वी डोंट केयर अबाउट दैट थिंग. व्हेन इट इज़ टेकन अवे फ्रॉम अस और व्हेन वी लूज इट, वी रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंट. द सेम थिंग अप्लाइज विद थिंग्स एंड विद पर्सन्स एज वेल. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी. नहीं तो फिलोसफी का लेसन हो जाएगा इंग्लिश की जगह. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky means strict. Okay? तो वो बोलता है कि अरे एम एमल सर चले जाएंगे हमें छोड़कर, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब कभी नहीं पढ़ाएंगे. इनका जो डंडा था, इनका जो स्ट्रिक्ट पना था, मैं उसको बहुत मिस करूँगा. Poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Sunday clothes का मतलब बेटा संडे को पहनने वाले क्लोथ्स नहीं है. संडे क्लोथ्स मीन्स अच्छे कपड़े, ठीक है, जो स्पेशल ओकेजन्स पर पहने जाते हैं. And now I understood why the old men of the village were sitting there. कह रहा अच्छा ये इतने अच्छे कपड़े पहन के इसीलिए बैठे हैं सर आज, क्योंकि आज इनका लास्ट लेसन है.
और ये अब जो विलेज के एल्डरली पीपल हैं, दे टू आर सिटिंग देयर in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school anymore, कि यार कभी स्कूल को ध्यान से नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. बेटा ये भी क्वेश्चन है कि विलेज एल्डरली पीपल क्यों बैठे हुए थे, तो वो इसलिए बैठे थे. इट वॉज अ वे ऑफ थैंकिंग टू देयर मास्टर फॉर 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. सडनली उनकी अपनी कंट्री उनसे स्नैच कर दी गई. अब आप सोचो कैसा लगेगा. नहीं मत सोचो यार, छोड़ो, बस उन्हीं की फीलिंग पर ही रहो. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट. अब उसकी टर्न आ गई. जैसे कभी होता है ना क्लास के अंदर, बारी बारी से एक टर्न आती है सबकी कि अब इतना तू पढ़, इतना तू पढ़. इसको तू पढ़ मेथड बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कि यहाँ तक तू पढ़, यहाँ तक तू पढ़. तो जब उसकी टर्न आई, what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake. वो चाहता था कि काश मैं एकदम एक बारी में बोल दूँ और इतना अच्छा बोल दूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, एवरीबडी शुड क्लैप फॉर मी. बट ऐसा हुआ नहीं. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. अब वो वहाँ खड़ा हो गया और यूँ सोचने लगा, जैसे क्लास में कई बारी कुछ किसी बच्चे से पूछो, हाँ बेटा ये बताओ जरा, और वो यूँ यूँ करने लग जाता है ना, कि सोचने लग जाता है कि यार अरे अरे आने वाला है, आ नहीं रहा, दिमाग में आ नहीं रहा. तो वो उसकी कंडीशन हो गई बेचारे की. बहुत परेशान हुआ. ओके. आई हर्ड एम एमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ. सी हाउ इट इज. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो. ये है बेटा प्रोकास्टिनेशन. कल कर लेंगे, कल कर लेंगे. अब ये देखना, वो अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि वो किस किस को ब्लेम करेगा इस प्रोसेस के लिए, टू कीप नेग्लेक्टिंग योर एजुकेशन, योर ओन लैंग्वेज, टू लर्न योर ओन लैंग्वेज. आप इसको नेग्लेक्ट करते जा रहे हो. हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच थिंग. अब देखो किस किस को ब्लेम करेगा, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है. एंड नाउ यू सी वी हैव कम आउट. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्साज. She puts off learning till tomorrow. Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. आप सपोज करो अगर हम चाइना पर अटैक कर दें और चाइना के कुछ पोर्शन को अगर अपने टेक ओवर में ले लें और हम उनको कहेंगे भैया चाइनीज़ नहीं पढ़ानी, अब तुम्हें सिर्फ हिंदी पढ़ानी है. तो आज से आफ्टर 50 years जब वो लोग बात करेंगे तो they won't be able to understand a single word of Chinese, but they'll be able to speak frequently, clearly Hindi. ठीक है. चलो, तो अगर ऐसा हुआ तो वो बोल रहा है कि आपसे लोग पूछेंगे, अरे तुम लोग अपने आप को फ्रेंच बोलते हो, बट यू कैन नेवर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज. हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ द फ्रेंचमैन, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पोअर लिटिल फ्रांस. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्व्स विद. वो कह रहा है बेटे तेरी गलती नहीं है खाली, हम सब की गलती है. अब देखो किस किस को ब्लेम कर रहे हो. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. आप लोगों के पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिया आपकी स्टडी पर. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. मतलब दे यूज देयर चिल्ड्रन rather than providing them basic education, they use them as money earner. बच्चों को काम पे लगा दिया कि छोड़ यार पढ़ाई वढ़ाई छोड़, पैसे तो आ रहे हैं कुछ. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. अब वो पेरेंट्स के साथ साथ अपने आप को भी ब्लेम कर रहा है. वाई इज ब्लेमिंग हिमसेल्फ. हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. वो कह रहा है कई बार मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था कि जाओ बेटा चले जाओ. कई बार मैं तुम्हें पानी डालने के लिए बोल देता था, जाओ जाकर मेरे प्लांट्स में वाटरिंग करके आओ. तो आपको क्या, आप उस टाइम क्या करते थे, यू हैव टू स्किप योर लेक्चर, यू हैव टू स्किप योर क्लास. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. वो कहता है बेटा जब मैं फिशिंग के लिए जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ तब भी तो तुम्हें हॉलीडे पे भेज देता था ना, तो मेरी भी गलती है. तो किस किस को ब्लेम कर रहा है. ही इज़ ब्लेमिंग द पीपल ऑफ अल्साज, द पेरेंट्स एंड himself as well. He is blaming himself as well. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. अब यहाँ से एक क्वेश्चन बिगिन हो रहा है बेटा, एक आंसर बिगिन हो रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उसके क्या आइडिया थे.
Okay, saying that it was the most beautiful language in the world. some of some of you means आप जो देख रहे हो बच्चों, some of you must have learned French in your junior classes, and you must have seen what kind of language is French. According to M. Hamel, obviously it is his mother tongue, so he must be proud about it. वो यही बोलेगा कि वर्ल्ड की बेस्ट लैंग्वेज है, इससे अच्छी कोई लैंग्वेज है नहीं, मोस्ट क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल. अब ये आपको डिसाइड करना है कि वेदर ही वाज राइट और नॉट. That we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, ये लाइन बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना. When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इस लाइन को एक्सप्लेन करना आ सकता है. इसका मतलब ये है, as long as you understand, you know your language, you have a key to your prison. मतलब अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो आपको पता है कि हमारी ये लैंग्वेज है, एंड इफ़ वी आर एनस्लेव्ड बाय सम अदर पावर एंड स्टिल वी हैव आवर ओन लैंग्वेज, वी हैव द की टू आवर फ्रीडम. मतलब जिस दिन भी हम उनको हटाएंगे वो अपनी लैंग्वेज के बेस पर ही हटाएंगे, और कोई रीज़न नहीं है. अगर हमारी लैंग्वेज इंटैक्ट है तो वो बेस्ट है. लैंग्वेज मीन्स देर आर सो मैनी ब्यूटिफुल लैंग्वेजेस इन इंडिया, इवन ऑल ऑफ देम आर सो ब्यूटिफुल, एंड द काइंड ऑफ वेरिएशन वी हैव इन आवर कंट्री, वी मस्ट प्राउड of it. We must proud of our heritage, whether it is any North Indian language, South Indian language, or any language from any part of India. सब इम्पोर्टेंट है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करते भी हैं. तो ऐसे ही अपनी मदर टंग की रिस्पेक्ट कर रहा है. ठीक है बेटा. देन ही ओपन द ग्रामर एंड read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. अब देखो उसको इतना अच्छा समझ में क्यों आया, ये भी क्वेश्चन है. बिकॉज ही हैज़ कंप्लीट attention towards the teacher. To understand something, you need to give complete attention to the teacher. Whichever subject the teacher is teaching, pay your complete attention to the teacher, towards the teacher. आप इतना कर लोगे, आप क्लास में भी अगर फुल अटेंशन दे दोगे तो बेटा कोई आपको वीक नहीं मान सकता, ना ही बना सकता. All he said seemed so easy, I think, too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with much patience. अब उसे लग रहा है कि यार सर ने कभी इतना अच्छा समझाया ही नहीं, क्या पता उसने कभी इतना अच्छा समझा ही ना हो. और हो सकता है एम हेमल ने भी आज बेटा अपनी पूरी जितना भी उनकी नॉलेज है, ही वॉन्टेड टू गिव ईच एंड एवरी बिट ऑफ हिज नॉलेज इन दैट सिंगल डे. सब कुछ उसी दिन देके जाना चाह रहे थे. I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. एक ही बारी में सब कुछ डालना चाह रहा था. So he was really putting all his efforts to teach them their language. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mehmal had new copies for us, written in beautiful round hand, France, Alsace. अब वो नई नोटबुक लाया था सब बच्चों के लिए, मतलब बच्चे और जो पीछे एल्डरली बैठे हुए थे वो भी सारे स्टूडेंट्स के लिए रेदर. तो वो येलो कलर की नोटबुक थी. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. सबके पास वो येलो कलर की नोटबुक थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्रेंच फ्लैग्स चारों तरफ हों. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. सब कुछ शांति से चुपचाप अपना काम कर रहे थे. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once, some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fishhooks, as if that was French too. अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा. इंपॉर्टेंट इसलिए कि समझने वाली बात है. यहाँ पर उसने एक अलग वे में समझाने की कोशिश करी. ये बोलता है सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ बीटल्स आए रूम के अंदर, कुछ इंसेक्ट्स आए, किसी ने ध्यान नहीं दिया. जो पीछे बर्ड्स थे जो ऊपर शेल्फ वगैरह पर, पिजन्स स्पेशली, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया. ठीक है. वो अपनी जो क्लोज थे उनसे स्क्रैच कर रहे थे वॉल को, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे वो भी फ्रेंच सीख रहे हो. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बनता है, लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Will they make them sing in German, even the pigeons?
आयरॉनिकल वे में वो बोल रहा है क्या इनसे भी तुम जर्मनी में कू करवाओगे। इसका मतलब ये है व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड द पावरफुल कंट्री impose their language, but the country is able to impose their language only on human beings. These flora and fauna, these parts of flora and fauna remain out of their reach. अब इनसे तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। Whenever I looked up from my writing, I saw a mammal sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. अब वो जब भी काम करते करते हैं मैमल सर की तरफ को देखता था, वो देखता था कि वो चुपचाप बैठे हुए हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि दैट डे ही वांटेड टू हैव द होल इमेज कैप्चर्ड इन हिज माइंड। सब कुछ स्टोर करना चाह रहे थे अपनी मेमोरी में। फैंसी। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth. बस क्या हुआ था, वो डेस्क और बेंचेस थे had been worn smooth, यानी इतना यूज होकर स्मूथ हो गए थे. The walnut trees in the garden were taller and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. Twined means twisted करके उसके रूफ तक पहुंच गई थी. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. बेटा he has been working there for the last 40 years. बेटा ये यूरोपियन कल्चर में क्या होता था ना, जहाँ स्कूल का कैंपस है, जहाँ स्कूल है, जनरली टीचर्स वहीं पर ही स्टे करते थे, ठीक है। तो इसलिए वो भी वहीं पर ही रहते थे, एम एम्बल सर भी। तो कितना बुरा लग रहा होगा, ही हैज़ टू लीव ऑल दीज थिंग्स बिहाइंड to hear his sister moving about in the room above packing their trunks for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन वो हर लेसन को बिल्कुल लास्ट तक सुन रहे थे. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bee bee boo boo down there at the back of the room. अब ये बेबी वाली लाइन क्या है, वो बच्चों को बोल रहा है, कि बच्चों को कंपेयर कर रहा है एक तरीके से, सबको ही छोटे बच्चों की तरह मान रहा है कि वो अपना प्राइमर लेकर अलग अलग वर्ड्स को पढ़ रहे थे. Down there at the back of the room, old Hoser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. अब old Hoser जिसने हम पहले बात करी थी, प्राइमर लेकर आया था, तो वो दोनों हाथों में से पकड़ के पढ़ रहा है. Spelled the letters with them. You could see that he too was crying. वो बेचारा रो रहा था. सभी इमोशनल थे at that time. His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Mixed feeling कैसे आई? Cry का क्यों था? Emotional क्यों थे? Because their language was not only their language, their country was snatched away from them. Okay? और laugh क्यों? The way Hoser was reading the primer, उसकी वजह से हंसी आ रही थी. How well I remember it, that last lesson. All at once the church clock struck 12. Then the Angelus. अब ये 12 बजे का चर्च सर्विस का एक टाइम होता है, प्रेयर का टाइम होता है एंजेलस, उसका टाइम हो गया 12 बजे का. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Prussian soldiers अपनी ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइज करके वापस आ रहे थे, तो उनके ट्रम्पेट के साउंड आ रहे थे. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. मतलब इतना दुखी उसे कभी नहीं लगा वो. My friends, said he, but something choked him. He wanted to say something, but the words couldn't come out of his throat out of emotion. He choked. Choke कैसे? जब emotions हो जाती है ना, तो आप बोल नहीं पाते हो, तो वही feeling आई. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Viva la France. Vive la France जो भी है, ये फ्रेंच वर्ड है, मतलब long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. Rather than telling them to do so, he gestured with his hand कि आप जाओ, school is dismissed. And the chapter is finished. अब बेटा NCERT के क्वेश्चंस हैं, NCERT के सारे क्वेश्चंस करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस अभी हमें एक चीज़ और करनी है.
वो हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिसाइड्स ऑल दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उनके अलावा ये और करने हैं आपको। Apart from these questions, if you have any other question in your mind, if you find any other question which you won't be able to understand, which you still won't be able to crack, you can ask me in the comment box. Okay, beta? I'll answer all your queries. How did MML's attitude change that day? ये पहले short questions हैं, then we'll move to the long questions. How did MML's attitude change that day? आपको पता ही है कि language उसकी change last day था. लास्ट डे उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया. रेदर देन बीइंग क्रैंकी ही टर्न इनटू अ पोलाइट पर्सन. ही टॉक टू देम इन अ वेरी पोलाइट मैनर. ही गॉट इमोशनल. ही वांटेड टू टीच देम इन अ वे विच ही हैड नेवर डन बिफोर. ठीक है. whom did MML blame for, ये हम सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. he blamed the parents. he blamed the people of Alsace. Because they have a feeling of, they have a habit of प्रोकास्टिनेशन के कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. एंड ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ एज वेल विद 2 रीजंस, वो हमने भी डिस्कस किए थे. नेक्स्ट है, हाउ वॉज एम हेमल ड्रेस्ड डिफरेंटली दैट डे एंड वाई. एम हेमल उस दिन अलग तरीके से ड्रेस क्यों किया था और क्यों, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन. सो इट इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन ही वॉज वेयरिंग दैट संडे यूनिफॉर्म. संडे मैंने बताया बेटा, संडे मतलब संडे वाला नहीं, मतलब finest clothes which he used to wear only on special occasions. Why does MML not want the people to forget French? इसमें वही आएगा लैंग्वेज की वाला. जब तक हमारे पास अपनी लैंग्वेज है, we still have hope to fight for our freedom. If we do not know our language, if we have forgot our language and will speak and talk and will speak and read and write only in the language which has been imposed on us, तो फिर हम फ्रीडम के लिए कैसे स्ट्रगल करेंगे, कुछ मतलब ही नहीं रह जाता फिर तो. नेक्स्ट है, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन एंड वाई. ये आपको बताया था मैंने, एल्डरली पीपल थे सारे. क्यों? टू शो द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द 40 year सर्विसेज ऑफ एम हेमल. नेक्स्ट, हु वॉज वॉचर. वॉचर वॉज द ब्लैक स्मिथ. वट डिड ही आस्क फ्रेंड्स एंड वाई. ही आस्क फ्रेंड्स to not to go in a hurry towards his school because there is a plenty of time. He said there was a plenty of time. How did Franz react? He thought that watcher was making fun of him. What did MML tell them about French language? What did he ask them to do and why? उन्होंने बोला, MML ने बोला कि French language is the world's easiest, simplest, most scientific language. And what did he ask them to do and why? Never to forget their language, because if you hold fast to your language, you have a key to your freedom. Why was MML wearing a Sunday clothes? This question which we have already discussed. Why was Franz able to understand everything very well on the last day? Because he was completely attentive towards what the teacher was teaching. And the way MML was teaching that day was really superb. He had put all his efforts that day, the last day. What is the significance of the last words? Why love France? Long live France means being a patriot. He wanted to see his country to remain fresh, to remain alive forever, to remain free forever, to remain democratic forever. And he loved his country so much, and he was really emotional that he had to leave his own area where he has been serving for the last 40 years. ओके बच्चों, अब लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट है, गिव योर इम्प्रेशन ऑफ MML एज अ टीचर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग. आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. MML के बारे में पूरा बता दो, किस तरीके का टीचर है, ह्यूमन बीइंग कैसा है, पैट्रियोटिक सिटीजन है, पैट्रियोटिक फ्रेंचमैन है, लवर ऑफ हिज ओन लैंग्वेज है. डिस्कस द लास्ट मोमेंट्स दैट फ्रांस विटनेस्ड इन द क्लास ऑन द डे ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन. अब लास्ट मोमेंट में बताना है बेटा, वहाँ से जो फ्लैग वाली कॉपीज़ लग रही थी, और थोड़ा बहुत वही बता दो कि उसकी टर्न आई तो वो बता नहीं पाया. फिर ये बता दो कि कैसे ओल्ड होजर जो था वो जब व्हेन ही वाज रीडिंग द चैप्टर, व्हेन ही वाज रीडिंग द प्राइमर, देयर वाज मिक्स्ड फीलिंग. ये बता दीजिए आप. ठीक है. और उसके बाद MML का जो बिहेवियर था वो बता दीजिए. इसके अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, if you want to look at some of the NCERT questions, the people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What
शोज यू दिस, वाई डज दिस हैपन? बेटा इसमें ये बताना है कि जो मैंने आपको बोला था ना अभी चैप्टर के अंदर, कि व्हेन समथिंग इज टेकिंग अवे फ्रॉम अस, only then we realize its true worth, and the rule applies on both the things and human beings relations. What shows you this? आपको बताना है कैसे उनकी जब लैंग्वेज उनसे स्नैच हो रही थी तो कैसे उन्होंने एफर्ट्स डाले अपनी लैंग्वेज को एटलीस्ट लास्ट डे तो रिस्पेक्ट दे ही दें. वाई डज दिस हैपन? वो बर्लिन वाला बता देना है कि बर्लिन से ऑर्डर आया था और अल्सास और लोरियन दो प्लेसेस वर कम्प्लीटली टेकन ओवर बाय द प्रशियंस, इसलिए विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इम्पोज जब लैंग्वेज करते हैं तो मोर्टल्स के ऊपर ही होती है, ह्यूमन बींग्स पर होती है. नेचुरल एलिमेंट्स फ्लोरा एंड फोना रिमेन आउट ऑफ देयर रीच, नोबडी कैन इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज ऑन देम. आयरॉनिकल स्टेटमेंट थी, इसलिए फ्रांस बोलता है व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला, हम डिस्कस कर चुके हैं. कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर अ कॉन्कर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज imposed on them? There are so many examples. आप कोई भी कोट कर सकते हो. मोर रिसेंटली अगर आप देखो तो चाइना ने कैसे तिब्बत को एनेक्स कर लिया है, तिब्बत को कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया है और तिब्बतन कल्चर को पूरा फिनिश करने की कोशिश है और चाइना का ही उन पर पूरा इम्पोज कर दिया है. ठीक है. अब ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेट वाला है, ये करने की कोई ऐसी नीड नहीं है. इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? डू यू नो what linguistic chauvinism means? If you feel pride on your language, it is good, it's not bad. But the bad thing is if you try to feel that your language is the most superior and the others are inferior. When there are difference created on the basis of language, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है. ठीक है. अदरवाइज अपनी लैंग्वेज को प्राइड फील करना कोई बुरी बात नहीं है. इट रियली गुड, इट इज़ रियली गुड एंड पीपल शुड हैव प्राइड ऑन देयर ओन लैंग्वेज. देयर इज़ नो हार्म इन इट. पे नो टेंशन टू इट. ठीक है बेटा. आई होप आपको समझ आया होगा चैप्टर. अगर अभी भी कोई भी आपको कोई इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछनी हो, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके. Till then, bye. We'll meet again with some new chapter.